Hello everyone, I Dilshad Begum from English Department. Once again, I welcome you to the online classes. Hope you all are learning something and enjoying it. As well, getting more benefits from all the classes of English core also. As we know that we were doing the writing skill, and in writing skill we have done so far notice and half of the invitation also. Invitations, I'm presenting day by day the different examples, the formal and informal invitations. It's a written form, it's a letter, short of letter, and short composition form. What is this actually? I'm presenting it. Hope you all are learning it and not getting any difficulties. If you are getting any difficulties, so please let me know, leave your comments so that I can fulfill it. Yeah, it's good response that I'm getting from you all, that you are learning it and taking it very seriously. As well, invitation, we were talking about the last class. So far we have known what is invitation, what are the types of invitations are. As well, whenever we write an invitation, what are the things that we have to keep in our mind, means the keywords of invitation. As well, we were talking about the different category, means the invitation. If you are inviting someone, what will be the response of that particular person. As well, we have known that what how to write, we have not known, in fact we are about to know acceptance letter, decline letter, and how will you write all these sort of invitations. So today I am going to tell you, as last class I described you, I put it in a frame and told you that how will you write an invitation. And same, if you have not watched the previous video of mine, so please first go through those videos so that your concept could be more clear, ताकि हम इसको कंटिन्यू दे आराम से कर सके. As well, now I will talk about little कि आज इन्विटेशंस के जो और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ I'll present you all. Like, you are a student of Newton Public School, Nagpur. The school is holding its annual function on Saturday, the 15th November 2020 at 11 a.m. The HRD Minister Dr. M.M. Joshi has consented to be the chief guest. Design an invitation card to be sent to the parent and other invitees. No, do not exceed 50 words. Again, I'm telling you all that it should not exceed more than 50 words. बार बार मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है ताकि आप अपने माइंड पे अच्छे से सेट कर ले. इट्स शुड नॉट बी लाइक एन ऐसी कि आप इसको लॉन्ग वे पे लिखेंगे. सो प्लीज़ अपने माइंड पे ये सेट कर ले कि आपके 50 वर्ड्स होते हैं शॉर्ट कंपोजिशन में, एंड इट शुड नॉट एक्सीड इट. गॉट इट. नाउ अगर हम इसको लिखेंगे तो एज इन द अर्लियर वीडियो आई टोल्ड यू कि कैसे आप इजीली इसको फ्रेम कर सकते हैं. लाइक सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट फैमिली, वॉट एवर इट इज़. सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्कूल, द फर्स्ट पर्सन टू हुम यू हैव टू इन्वाइट ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल. न्यूटन पब्लिक स्कूल इज ऑलरेडी गिवन, यू जस्ट हैव टू राइट न्यूटन पब्लिक स्कूल, नागपुर. सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, जैसे मैंने कहा था कि आपको शुरुआत में ये करना है. ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, क्या ओकेजन है, द एनुअल फंक्शंस ऑफ दियर स्कूल एट, स्कूल के एनुअल फंक्शंस हैं. कब हैं, 11 बजे, 11 AM ऑन सैटरडे द 15th November 2017, 18, 19, 20, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट डाउन. डॉक्टर M.M. जोशी, जो HRD मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स. RSVP, principal, Newton Public School, phone number, this one. Okay, this is what we were doing about the invitations. और ये आपके फॉर्मेट है जो आपको बॉक्स के अंदर ही डालना है. ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ सो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट इट एंड कीप इट इन योर माइंड. सो हाउ यू विल राइट एन invitation to the invitees, the parents, that whoever is going to come in your exams, whoever is going to come in your school, that according to that you are inviting. So now next I'll present one more example so that your concept might be clear.
And now this is the questions. The next question is, on 30 November on your school is going to hold its annual sports day. 30 नवंबर को आपका स्कूल जो है एनुअल स्पोर्ट्स डे करने जा रहा है एंड यू वांट मिस्टर धनंजय पिल्लई. ये एक स्पेसिफिक नाम यहाँ पे मेंशन है कि धनंजय पिल्लई जो है अ नोटेड हॉकी प्लेयर टू गिव अवे द प्राइजेस द बर्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन. डेफिनेटली जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं किसी वर्ड से तो आप चाहेंगे कि जो जिस फील्ड से रिलेटेड हो वो उस फील्ड्स का अगर वो पर्सन बोलता है तो ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन उसके माइंड पे होता है कि यस आई एम अ प्लेयर एंड आई एम गेटिंग द प्राइजेस फ्रॉम अ बिग प्लेयर. सो इट्स सच अ बिग थिंग. हो सकता है आप जब एक किसी भी एकेडमिक फील्ड पे आप जाएंगे सो यू विल फाइंड कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं एक बहुत ही बड़े रिनाउंड डॉक्टर से आपको कुछ मिलता है या आप प्रैक्टिस करते हो ड्यूरिंग दोज पीरियड बहुत ही बड़े रिनाउंड से आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो. किसी टीचिंग फील्ड पे आप अगर शुरू ज्वाइन करते हो या फिर कुछ करने की कोशिश करते हो और आपको बहुत ही अच्छे रिनाउंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड विद दैट फील्ड अगर आपको अप्रिशिएट किया जाता है सो इट बिकम्स सच अ बिग थिंग फॉर अस जिसको शायद ही हम लोग कभी लाइफ में भुला सकते हैं. सो यहाँ भी मिस्टर धनंजय पिल्लई को जो है एक नोट जो कि हॉकी प्लेयर है बहुत बड़े उनको बुलाया गया है. बाकी के जो न्यू जनरेशन्स के हॉकी पर्सन्स हैं जितने भी जो स्कूल में खेलते हुए आए हैं जो जीतते हैं इनफैक्ट जो स्कूल का नाम ऊँचा करते हैं तो उनके लिए एक फॉर्मल इन्विटेशन तैयार करना है उनको प्राइज़ देना है. तो एक ऐसे इन्विटेशन तैयार कीजिए 50 वर्ड्स के अंदर है. लिसन, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चंस कि आपको विद इन 50 वर्ड्स इसको रिक्वेस्टिंग टू ग्रेस द ओकेजन यू आर करुण और करण स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. द डेग्नेशन पोजीशन इज मेंशनड ओवर हियर कि आप जो है सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है किस स्कूल के सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा के. और योर नेम इज़ वेदर इट्स करुणा और करण. अगर आप बॉय है तो करण है आप गर्ल है तो करुणा है. योर नेम ऑलवेज विल बी देयर जिसके अकॉर्डिंग आपको इनविटेशन लिखना पड़ता है. वेदर इट्स इनविटेशन वेदर इट्स नोटिस वॉट एवर इट इज़ आप इसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे. इफ़ या वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि देर इज़ आई थिंक वीडियो क्वालिटी प्रॉब्लम इज़ देयर. So I always got to know that students are telling me कि ma'am there is a video problem so the words are not very clear to them. So it's my request, humble request in fact for you all कि whatever I dictate just write down the questions at least and जो भी आपको नज़र आए try to copy it ताकि आपको ज़्यादा clear हो सके. So this is the questions और उस questions का हम आंसर करते हैं और अब व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस. सबसे पहले सनराइज स्कूल जो है आपका ग्लोबल स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है आगरा का तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल सनराइज ग्लोबल स्कूल. देन टेक्स प्लेजर इन इनवाइटिंग नोटेड हॉकी प्लेयर. नोटेड हॉकी प्लेयर कौन है मिस्टर धनंजय पिल्लई टू ग्रेस द ओकेजन ऑफ इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे and to give away prizes to our budding sports person on 30 November 2017, 18, 19, 20 whatever date will be there from 8 a.m. to 12 p.m. Now the timing is mentioned, date is mentioned, who is going to come that is mentioned, from there where this program is going to be held that is also mentioned. Now awaiting a favorable response from your end. अब इनको जो है एक रिस्पॉन्स भी चाहिए कि वेदर ही इज़ कमिंग और नॉट. ओके सो एक फेवरेबल रिस्पॉन्स चाहिए अपने स्कूल से कि ये अगर हो रहा है तो इसके लिए आप मुझे रिस्पॉन्स करें. तो जैसे मैंने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट इन्विटेशंस वेदर द एक्सेप्टेंस लेटर इज देयर एक्सेप्टेंस इन्विटेशन इज देयर और एल्स डिक्लाइन लेटर. अगर आपको एक्सेप्ट करना है इस बात को तो आप एक्सेप्ट करेंगे. अगर आपको डिक्लाइन करना है तो आप इसको डिक्लाइन वे पे लिख कर भेज देंगे ताकि वो समझ जाए कि यू आर कमिंग और नॉट. सो करुणा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एंड अगेन यू आर पुटिंग इट अंडर द बॉक्स. आप इसको फिर से बॉक्स में अच्छे से चारों तरफ से स्केल से करके और इसको डन इट्स कंप्लीटेड.
Yes, if there is any query, please let me know. Again, I'm telling you कि इस तरह आपको सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, लाइक स्कूल नेम, हु इज़ कमिंग, द नेम ऑफ दैट पर्सन, कौन से प्रोग्राम होने वाला है, किस तरह के प्रोग्राम होने वाला है, कौन आने वाला है, और क्या वो जब आए तो क्या है उनका मकसद करने का। जैसे उनको यहाँ पे फ़िलहाल प्राइजेस देना है, और क्या क्या टाइमिंग है, क्या डेट है। सो ये लास्ट में जब आपको किसी का रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो यहाँ पे आप ज़रूर पुट करेंगे, वेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। इसी से रिलेटेड वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, और ये इस एग्जाम्पल को मैं शॉर्ट से बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ भी जाएं। तो अगर हम एक एक्सेप्टेंस लेटर लिखते हैं, इफ़ यू राइट एन एक्सेप्टेंस लेटर, तो वो कैसा होता है, प्लीज़ लेट मी नो। आई टेल यू, you have received an invitation to be the judge for a literary competition. देयर इज अ क्वेश्चंस कि आप लिटरेरी कॉम्पिटिशन की जज के लिए आपको इनवाइट किया गया है इन संत एंस स्कूल से। सेंड अ रिप्लाई इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स कंफर्मिंग योर एक्सेप्टेंस, यू आर मोहन या मोहिनी। ये क्वेश्चंस है कि आपको इनवाइट किया गया, अब आपको उसके लिए क्या करना है, वेदर यू वांट टू कम और नॉट। तो एक एक्सेप्टेंस लेटर के तौर पे आपको प्रेजेंट करना है। आप जो है यहाँ पे मोहन या मोहिनी के डेजिग्नेशन से हैं। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पे लिखा आता है दैट इज कन्फर्मिंग एक्सेप्टेंस। कन्फर्म किया जा रहा है, ये कन्फर्मिंग एक्सेप्टेंस लेटर लिखना है, तो कन्फर्मिंग एक्सेप्टेंस बॉटम में बिल्कुल आप इसको मिडिल में लिखेंगे। एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड यू विल स्टार्ट 16 XYZ लेन ABC नगर चेन्नई, यानी आप सबसे पहले उसका नाम देंगे जो सेंडर है, जिसके पास ये इन्विटेशन गया वो रिप्लाई दे रहा है। द एड्रेस ऑफ द सेंडर संत एंस स्कूल JBS नगर चेन्नई। उसके बाद आप रिसीवर एड्रेस देंगे एज यू ऑलवेज गिव इन अ लेटर वे। देन देर इज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन फॉर जजिंग द लिटरेरी कॉम्पिटिशन। ये एक एक्सेप्टेंस है इन्विटेशन का, किस लिए, जजिंग द लिटरेरी कॉम्पिटिशन को जज करने के लिए। सर, I would like to express my gratitude to Sant Anne's School for inviting me to be the judge for a literary competition. Simple, and as it start, I would like to express my gratitude टू संत एंस स्कूल फॉर इन्वाइटिंग मी, कि संत एंस स्कूल ने मुझे इस कंपटीशन के जज के लिए मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं शायद ही इस खुशी को अपने प्रेजेंट कर पाऊँ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, एंड आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस। और इसी तरह वो कहते हैं कि आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस फॉर द सेम एंड विल मेक श्योर, और इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने इनवाइट किया है उसके बिहाफ में लेटर अगर जा रहा है तो आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस फॉर द सेम, जो भी आपने मुझे जिसके लिए कहा है मैं उसके लिए फॉर द सेम थिंग आई कन्फर्म एंड विल मेक श्योर, मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी दिलाता हूँ कि एंड विल मेक श्योर दैट आई एम प्रेजेंट देयर एट द शेड्यूल डेट एंड टाइम। मैं वहाँ पे बिल्कुल हूँगा प्रेजेंट, वहाँ हूँ ही मैं जैसे कि प्रेजेंट, और जो शेड्यूल और जो टाइम डिसाइडेड है उसी वक्त और उसी टाइम पे। यू सिंसियरली मोहन, और आपका सिंसियरली जो है मोहन। सो ये आप इससे यहाँ से बॉक्स, जबकि ये मेरा टर्न किया है ना मैंने पेज, और उसमें ये मैं लिख पाई हूँ क्योंकि मेरे पेज में उतना स्पेस नहीं था। सो आई हैव रिटन इन द बैक साइड। तो आप यहाँ पे बॉक्स जो है इसको क्लोज करेंगे, यू विल इनक्लोज इट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। नाउ दिस इज़ एक्सेप्टेंस लेटर, और ये एक्सेप्टेंस लेटर है। इसी तरह डिक्लाइन लेटर भी, अगर आपको मैं एक और एग्जांपल प्रेजेंट करूँगी कि हाउ टू राइट अ डिक्लाइन लेटर, सो आप उसी के साथ उसको प्रेजेंट करेंगे। एंड नाउ आई थिंक इट विल बी द एंड ऑफ इन्विटेशंस। सो आफ्टर प्रेजेंटिंग one or two more example of invitation, and hope you got it, you are working on it. If you have not gone through all the lectures, so please go through that lecture and learn it as much it can be possible for you. So if there is any more doubts, any queries, so please let me know so that I can sort out it. Till then, thank you.